Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So now we start our first lecture after the introduction, and this lecture is about digital image fundamentals and the image acquisition process. So we'll be knowing uh, how a digital image is composed and how do we acquire a digital image. This slide actually shows you the whole process of image acquisition, all the actors involved in making an image are being shown here. So we have this object, the scene element, some illumination from an energy source, be it the sun or a bulb or any source which emits light. उसकी रोशनी जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, then it reflects, and it reflects based on the properties of that object. So अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट लाइट को, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देते हैं. And then comes the start of our imaging system. This reflected energy falls on the image plane, camera sensors. They sense them, they convert the incident energy into electricity, and that thing is given a meaning, that thing is given a value. And we call this to be an output or digitized image. So if there is no illumination source, every object will seem to be of which color? Fahad or Zubair? If there is no incident energy, there is no illumination, what would be the color of that object? सर जो मतलब रिफ्लेक्शन के साथ आएगा तो फिर ब्लैक नहीं होगा. हाँ, अगर रिफ्लेक्शन नहीं है, अगर एक्चुअली एनर्जी सोर्स ही नहीं है, तो एवरीथिंग इज ब्लैक. So like we are sitting in a room and wearing different colored shirts. Every color is visible as far as we have light. और जैसे वो लाइट खत्म होती है, everything is dark. So number one comes this illumination source, the energy source, जहाँ से वो रोशनी आ रही है. Number two comes the object itself, कि उसकी क्या characteristics हैं, कि वो कितनी एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी रिफ्लेक्ट कर रहा है. नंबर थ्री कम्स द कैमरा और any capturing device which is getting that information, and ultimately it becomes a digital image. Number four, when we save those values captured into the form of gray levels, when we assign them some gray levels. Now how is this thing done? This will be discussed in later slides. This was just an overview of how we see things. In similar way, इसी तरह बिल्कुल लाइट होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और इस जगह के ऊपर जो है हमारे पास ह्यूमन आई और ब्रेन आ जाता है. आई एंड ब्रेन इन केस ऑफ ह्यूमंस. सो हमारे आंखों के अंदर डिफरेंट कोन्स हैं और वो कोन्स जो हैं दे परसीव द इंटेंसिटी ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू, and then they send signals to our brain and the brain makes colors out of it. और हमें वो सीन नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, जबकि ये इन्फॉर्मेशन जो कैप्चर की थी वो हमारी आंखों के अंदर मौजूद कोन्स ने की थी. इसी तरह हम लोग रात को भी किसी हद तक देख सकते हैं. अब रात को अगर इंसिडेंट एनर्जी भी कोई नहीं है, वहाँ पे हमारी कोन्स काम नहीं करती, वहाँ पे हमारी आंखों की रॉड्स काम करती हैं. तो हमारी ह्यूमन आईज जो है दे कंसिस्ट ऑफ कोन्स एंड रॉड्स. रॉड्स डोंट परसीव कलर्स, इसलिए हम रात को थोड़ा बहुत देख सकते हैं. although हमें कलर्स फील नहीं होते, लेकिन हम कुछ देख सकते हैं, and that is only because of the rods which are part of our eyes. And in the daytime, or when we have illumination, when we have that energy which is which falls on some object, we can see colors because of the cones which are part of our eyes.
तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे रोक के पूछ सकते हैं। सर जी बेटा। जो ये जो इल्यूमिनेशन जो सोर्स होगा ये डिफरेंट कलर मतलब एमिट करेगा, मतलब देखो अगर कि तो आप सही कह रहे हो, देखो इसमें अगर तो हम बात करें ना सनलाइट की, तो सनलाइट के अंदर तो हर तरह की वेवलेंथ जो है लाइट की मौजूद होती है। लेकिन यस, जो रोशनियां जो बल्ब लगे होते हैं कमरों के अंदर दुकानों के अंदर, यस उनके अंदर पूरी वो रेंज नहीं है। इसीलिए बहुत दफा ऐसा होता है कि हम जब कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान में, तो वो दुकान के अंदर एक कलर का लग रहा होता है और जब बाहर आके हम उसको सनलाइट में देखते हैं तो वो कलर डिफरेंट होता है। तो रीजन ये है कि सनलाइट के अंदर चूंकि वो तमाम कंपोनेंट्स मौजूद थे, तमाम वेवलेंथ्स के जो एक लाइट जिन पे मुश्तमिल होती है, इसलिए वहां पे हमें उस ऑब्जेक्ट का या उस कपड़े का एक्चुअल कलर नजर आ रहा था। जबकि दुकान के अंदर जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग थी वहां पे वो रेंज पूरी मौजूद नहीं थी, इसलिए वहां पे हमें उस कपड़े का कलर जो है थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था। उम्मीद है मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सर ये मगर जो ग्रिड पे जो शो होगा वो मतलब ग्रे कलर का शो ही होगा हमें। नहीं 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 बेटा, ये अभी सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए है। मतलब अभी जो आप सामने ये डायग्राम देख के बात कर रहे हो, तो ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगा कि हाउ एक्चुअली कलर इमेजेस आर फॉर्म। सो प्रेजेंटली ये जो आपको सामने नजर आ रहा है दिस इज ग्रे स्केल। और हाँ, अभी हम जितनी बातचीत भी करेंगे वो भी सिंपल हम करेंगे ग्रे स्केल के हद तक, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात कलर तक लेके जाऊंगा। ठीक है जी कोई और क्वेश्चन? जी नूर, आपने माइक बंद कर दें। ओके, सो व्हेन वी से कि किसी भी इमेज के स्पेशल कोऑर्डिनेट पे, नाउ लेट्स डिस्कस एक्चुअली what an image is. So the simplest form of an image can be discussed as a 2D matrix. It is a 2D matrix. We have different row numbers, and we have different column numbers. And at the intersection of every row and column, at the intersection of every row and column is a pixel, and pixel is actually a value. So if I say that a pixel can be represented by an expression f of xy, that means the value of the pixel. So the intensity or the brightness or the value of an image at a specific coordinate, एक specific row number और एक specific column number पे पड़ी हुई value is actually represented by f of xy. Now this value can be greater than 0 and less than infinity. It can be any value, it can be any value. But whatever this value is, whatever this pixel value is, it is determined by two factors. And factor number one is the illumination component, and the second one is the reflectance component. Illumination component is actually the amount of light which is incident on that object. This object में पड़ी है light, that is represented by I of xy. And reflectance R of xy is basically the property of that object कि वो कितनी उसमें से रिफ्लेक्ट कर रहा है. So ultimately किसी भी इमेज के किसी पिक्सल पे पड़ी हुई वैल्यू जो है, ये एक्चुअली बनी किस वजह से, इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी और रिफ्लेक्टेंस एनर्जी कितनी थी, इससे. तो इसी इक्वेशन से अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो जीरो है, यानी कि कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? अगर आई ऑफ एक्स जीरो ही आएगा सर, जीरो ही आएगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इंसिडेंट एनर्जी ही जीरो है तो आपके पास वैल्यू जीरो आएगी. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दैट थिंग और दैट पिक्सल विल लुक ब्लैक, नथिंग, जीरो वैल्यू. इसी तरह अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट की वो कुछ भी ना हो, मतलब कि वो सारा कुछ अब्सॉर्ब कर ले, तब क्या आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स वाई पे? तब भी जीरो ही आएगा, तब भी वो चीज ब्लैक दिखेगी. एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम कहते हैं कि जब कोई हम में से ब्लैक शर्ट या ब्लैक कपड़े पहनता है तो वो गर्मी को अब्सॉर्ब करता है.
एंड वी यूजुअली फील दैट कि वो एक सिंक के तौर पे बहुत सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और वाइट जो कपड़ा है वो हमेशा ठंडा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। So that is the basic reason. Anyways, I was just discussing that how a pixel value is formed. So that pixel value is dependent on the incident energy as well as the reflectance from that object. इंसिडेंट एनर्जी जो है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी से कम हो सकती है। सो अगर सूरज की रोशनी है तो इट्स ऑलमोस्ट इन्फिनिटी एंड 0 कभी भी नहीं हो सकती। इट्स सेड कि एनर्जी कभी 0 नहीं होती। सिमिलरली आज तक कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या उसका ऐसा सरफेस या एक ऐसा पेंट नहीं बना जो फुली अब्सॉर्ब करता हो, तो इसलिए इक्वल टू 0 नहीं कहा गया। और इसी तरह आज तक कोई ऐसी सरफेस नहीं बनी जो मुकम्मल तौर पे पड़ने वाली एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे, सो इसीलिए इसको इक्वल टू 1 नहीं कहा गया। Now we come towards an example of how we digitize images. So let's think about this image which I'm numbering as 1, जिसमें हमें कोई एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, and right now we are just discussing one row of that image which is from point A to point B. अब अगर ये पूरी रो जो है दैट कंपोजेज ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो हमें नजर आ रहा है कि शुरू में यहाँ पे जो वैल्यूज हैं दे आर अपीयरिंग टू बी वाइट एंड वाइट मींस हाई वैल्यूज, हाई वैल्यूज इन स्केल। अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये हाई वैल्यूज। देन कम्स अ पॉइंट जहां पर जाकर के एकदम जो वैल्यूज हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, तो ये एकदम वैल्यूज नीचे आ गई, ब्लैक हो गई, ये ब्लैक वैल्यू आई। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं वैल्यूज जो हैं वो फिर से दोबारा थोड़ी ब्राइट होना शुरू होंगी, ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ब्राइट हो रही हैं, और फिर दोबारा यहाँ से ऑनवर्ड डार्क होना स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ से ऑनवर्ड डार्क होना स्टार्ट हो गई हैं, एंड देन वी रीच अ पॉइंट दिस वन जहाँ पे फिर दोबारा ये वापस हाई हो गए, वाइट हो गए। ये तो है एक प्लॉट इस रो के अंदर पड़े हुए पिक्सल की वैल्यूज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इस एक्चुअल को कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि आप लोग कई दफा कुछ गानों की MP3s गूगल से ढूंढते हैं, एक ही गाना ABC, उसकी आपको मल्टीपल सोर्सेज से फाइल्स मिलती हैं, आप उनमें से किस फाइल को डाउनलोड करते हैं? उनमें क्या चीज मुख्तलिफ होती है, या आपका मकसद उस वक्त उनमें से किस किस्म की फाइल को डाउनलोड करना होता है इफ इट इज अ म्यूजिक फाइल? So जी, आपका quality of question. the music. Quality, exactly. Now, can anyone tell me a bit more about this quality? So like sound कितना clear है उसमें, और उसमें कोई नॉइज तो नहीं है, अलग तरह की डिस्टॉर्शन तो नहीं है, ये ऑडियो के बिल्कुल ठीक है। सेंस में ये है। बिल्कुल ठीक है। कभी आप में से किसी ने इन फाइल्स के साथ कोई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का पढ़ा हो, लफ्ज कोई लिखा हुआ, या अगर आपको ये फील हो कि वो फाइल जिसको आप समझते हैं कि वो क्वालिटी में बहुत अच्छी है, उसका साइज काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट फाइल जिसकी क्वालिटी कम है? जी सर, ऐसा होता है, वहाँ पे अलग अलग आ रहे होते हैं साइजेस एक ही म्यूजिक फाइल के। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। तो इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का उस के मुताबिक ये होता है कि पर सेकंड आप कितने सैंपल्स उसके पिक कर रहे हैं। अगर सपोज आपने म्यूजिक के जो सैंपल्स हैं, जब रिकॉर्डिंग उसकी हुई या वो जो फाइल्स आपको दी गई हैं, उसके अंदर 1 सैंपल पर सेकंड उठाया,
एज कंपेयर टू कि जब आपने 10 सैंपल पर सेकंड उठाए तो फिर सेकंड के अंदर बदल जाने वाली आवाज आपको 10 सैंपल पर सेकंड वाली फाइल में नजर आएंगे, दूसरी में आपको वो मिस होती नजर आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको फील नहीं होगी। या मैं इसको एक और तरह से बयान करता हूँ। सपोज आप लोगों ने सेशनल 1 का पेपर दिया हार्ड कॉपी में, आप लोगों ने वो पूरा एग्जाम पूरा किया, आपने उसके अंदर जो है वो शायद कोई 10,000 अल्फाज लिखे उन क्वेश्चंस के आंसर्स के तौर पे जो मैंने आपसे पूछे थे। अब अगर मैं ये करूं कि आपके उस आंसर बुक को सिर्फ पहले पेज को देखूं और आखिरी पेज को देखूं, तो मैंने बेसिकली उस आंसर बुक में से सिर्फ 2 सैंपल पिक किए। क्या मेरे पास आपकी लिखी गई इंफॉर्मेशन की ट्रू पिक्चर आई? ऑफ कोर्स नॉट। द रीजन इज कि मैंने सिर्फ पहला पेज देखा और आखिरी पेज देखा, तो मेरे पास हरगिज वो ट्रू पिक्चर नहीं आई कि आपने क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है ताकि मैं उसको मार्क कर सकूं। अब मैंने एक काम ये किया कि अच्छा मैं अपने सैंपल्स को बढ़ाता हूं। अब मैं सिर्फ एक पेज खोलूंगा, उसको एक नजर देखूंगा, अगले पेज पे चला जाऊंगा। अब हो सकता है कि मेरे सैंपल्स की तादाद जो है वो 8 हो जाए अगर आपने 8 पेज भरे हैं, लेकिन स्टिल क्या मेरे पास बेहतर पिक्चर आई उस इंफॉर्मेशन की जो आपने वहां पे ट्रांसफर की थी, जो लिखा था? स्टिल नॉट, बिकॉज मैंने तो सिर्फ एक नजर दी है सिर्फ उस पूरे पेज को, उसको पूरा पढ़ा नहीं है, बस एवं ही उसको देखा और आगे गुजर गए। करते करते मैं एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाता हूं जहां मैं आपके 10,000 अल्फाज को एक एक को पढ़ता हूं। अब इसका मतलब है कि उसी एग्जाम के आंसर में से मैंने 10,000 सैंपल इकट्ठे किए। पहली दफा मैंने सिर्फ 2 सैंपल इकट्ठे किए, दूसरी दफा मैंने 8 किए, फिर मैं उसको बढ़ाता गया, फिर मैंने आपके पेपर को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा। तो जितने अल्फाज आपने लिखे मैंने उन सबको पढ़ा, वो सारे सैंपल मैंने कलेक्ट किए। नाउ आई हैव गॉट द बेस्ट आइडिया कि आपने उस पेपर में क्या लिखा है। सो इस एग्जाम्पल से मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा था, दैट वाज सैंपल्स, the amount of information I acquired from that paper, from that solution of yours. अब इसी बात को अगर मैं उस ऑडियो में कहूं तो मैं ऑडियो में ये कहूंगा कि हर सेकंड के अंदर उस आवाज की तब्दीली में, उसके बदलाव में जो कुछ था उसको मैंने कितनी दफा रिकॉर्ड किया। अगर मैंने 1 सेकंड में 1 दफा रिकॉर्ड किया और पूरी फाइल बन गई तो आपको शायद उस म्यूजिक की वो फील ना मिले, जबकि अगर मैंने 1 सेकंड में 22,000 सैंपल पिक करने शुरू कर दिए तो आपको वो म्यूजिक सुनते हुए यूं फील होगा कि जैसे आप वहीं पे बैठे हुए हैं जहां पे वो म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई है फ्रॉम द सेम थिंग कि आपको फील हो रहा है कि वो रियल है। यहां तक मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो मुझसे पूछ लें। ओके, अब मैं आ जाता हूं इस इमेज के बारे में। इस इमेज के अंदर ये मैंने बताया था कि एक्चुअल सिचुएशन है कि अनलिमिटेड सैंपल्स हैं जो वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये काम करूं कि मैं इस इंफॉर्मेशन में से एक सैंपल ये पिक कर लूं, दूसरा ये कर लूं, तीसरा ये कर लूं, चौथा ये कर लूं, एंड सो ऑन, इतने इतने फर्क से मैं सैंपल पिक करना शुरू कर दूं। अब फर्ज करें कि अगर तो मैं इसमें से, बल्कि मैं इसको और बेहतर ये करता हूं, एक सेकंड मैं इसकी एक इमेज बना लेता हूं। सपोज मेरे पास ये कुछ न्यू इमेज था, ये था एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये थी मेरी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सैंपल यहाँ पे उठाया, दूसरा सैंपल मैंने यहाँ पे उठा लिया, तीसरा मैंने सैंपल यहाँ उठा लिया, चौथा यहाँ उठा लिया, पांचवा यहाँ उठा लिया। अब अगर मुझे कोई कहे कि इन 5 सैंपल से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दो, तो मैं जो शेप बनाऊंगा वो ये बनेगी और इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, यही बनेगी, जबकि इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है।
रीजन इज कि मैंने 5 सैंपल उठाए थे, अब 5 सैंपल से तो यही शेप बन सकती है। अब मैं अगर इन नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद इंक्रीज कर दूं, एक यहाँ पे बना दूं, एक यहाँ बना दूं, 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 तो प्रॉब्ली मेरे पास शेप आहिस्ता आहिस्ता ये बनना स्टार्ट हो गई। Now see, I'm moving towards the actual. The more samples I collect, the more perfectly I can reconstruct it, or the more perfectly I can save it. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाई गई है, इसके अंदर ये सैंपल्स कुछ दिए गए हैं जिनको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे छोटे छोटे वो वाइट कलर के बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे होंगे। Those are the locations where we are gathering the information. अच्छा, अब ये बात तो सबको समझ आ गई that the more samples we have, the better picture we can draw about something, be it a music, be it an exam solution, or be it an image. जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करेंगे उतनी ज्यादा हम रियलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं वो एग्जाम वाले सिनारियो में दोबारा चले जाऊं कि मैंने आपके अल्फाज तो 10,000 पढ़े, लेकिन जब मार्किंग का टाइम आया तो मैंने मार्किंग में जो क्राइटेरिया रखा वो रखा या 0 या 10 अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जी नंबर जो है वो या 0 होंगे या 10 होंगे, अब उन 10,000 अल्फाज के पढ़ने का अल्टीमेट फायदा कोई नहीं मिला, जबकि मैंने जब उनको सेव करना है, उनको वैल्यूज असाइन करनी है, तो मैंने या 0 करनी है या 10 करनी है। अब फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मार्क्स में ना ये ज्यादती हो रही है, मैं वैल्यूज रख लेता हूँ 0, 5 एंड 10। अगेन उन 10,000 वैल्यूज के पढ़ने का मुझे कोई 10,000 अल्फाज के पढ़ने का कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ, जबकि जब मैं नंबर लगाऊंगा तो नंबर्स को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि क्लास के अंदर कोई कितना अच्छा था और कितना बुरा था, क्योंकि मैंने टोटल 3 लेवल रखे हुए, या लोगों को 0 मिलेगा, या लोगों को 5 नंबर मिलेंगे, या लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। तो अगर मैंने सिर्फ 3 लेवल रखे हों तो किस तरह पता लगेगा कि क्लास के अंदर लोगों की इस तादाद में कितना फर्क है। अगर 40 बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उनके मार्क्स के अंदर कितनी डिफरेंशिएशन है, कौन किससे कितना बेहतर जानता है, या किसने किससे कितना ज्यादा बेहतर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हालांकि मैंने हर एक बंदे के लिखे गए तमाम अल्फाज पढ़े, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन जब टाइम आता है उनको मार्क करने का तो मैं लेवल्स की तादाद बड़ी कम रख देता हूँ। सो फाइनली आई डिसाइड कि यार जो मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 10 होने चाहिए। अब किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 0 भी आ सकते हैं, किसी के 1 आएंगे, 3 आएंगे, 4, 5, जिसने जिस तरह लिखा उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स नजर आएंगे। अब 10 के स्केल पे ये बड़ा इजी हो गया कि मैं उनके दरमियान फर्क को जान सकूं, मैं एक्चुअल पिक्चर जान सकूं कि किसको कितना आता है। लेकिन पूरे पेपर के लिए अगर मैं 0 से 10 के स्केल पे नंबर दूं तो शायद यहाँ पे भी गलत काम हो जाता है। तो मुझे जो है अपने नंबर ऑफ लेवल बढ़ा के 0 से 50 या 0 से 100 रखने पड़ेंगे, ताकि मुझे ज्यादा ट्रू पिक्चर मिले कि किसने कितना बेहतर उसको सॉल्व किया हुआ। अब एक जगह पे मैंने 101 लेवल रखे हैं, यानी कि 0 से लेके 100 तक मार्क्स हो सकते हैं किसी के, 101 लेवल है, और कहीं पे मैंने सिर्फ रखे हुए थे 0 और 10, 2 लेवल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है कि कितनी आपने इंफॉर्मेशन कैप्चर की है, वैसे ही उन सैंपल्स को सेव करते हुए कितने लेवल्स में सेव करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस थिंग इज नोन एज क्वांटाइजेशन। अब यहां पे गौर करें कि आपने ये सैंपल भी इकट्ठा किया था, ये भी इकट्ठा किया था, ये भी इकट्ठा किया था, इनकी वैल्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ थी, लेकिन जब सेव करने की बारी आई तो आपने सिर्फ लेवल रखे हुए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने 8 लेवल रखे। तो हुआ क्या, 8 लेवल्स की वजह से ये तमाम वैल्यूज चूंकि करीब करीब थी, इन सबको एक ही नंबर मिल गए। यार उसी तरह जिस तरह अगर मैं आपके पूरे पेपर के नंबर जो है वो 0 से 10 तक इंटीजर स्केल में दूं, तो जिसके 9.3 बनते थे
उसके भी 9 बनेंगे, और जिसके शायद 89 बनते थे उसके भी 9 बनेंगे। और जब मैंने ये स्केल जो है वो 0 से 100 पे ले गया, तब बड़ी आसानी से किसी के 88 बने, किसी के 90 बने, किसी के 92, किसी के 93 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चूंकि इस एग्जांपल में जो आपके सामने शो की जा रही है, स्केल्स की तादाद कम थी, 8 स्केल थे, तो हालांकि वो वैल्यूज एक दूसरे से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब मजबूरी है कि आप उनको सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज हैं जो आपस में बड़ी मुख्तलिफ थी, यानी कि अगर मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ तो इनके अंदर फर्क था, लेकिन चूंकि आपके पास लेवल इस तरह का डिफाइन हुआ था, तो आप उन सब को सेम ही लेवल असाइन कर रहे हैं। ये किसी का एक क्वेश्चन है, अहमद, अगर आप कनेक्टेड हो तो आपने कनेक्टेड रहना है, भले आप डिस्कनेक्ट हो जो आपने रहना है, क्योंकि बेटा मैंने जो अटेंडेंस है वो रैंडमली कॉल किया करनी है हर लेक्चर के अंदर, और फिर मैंने रैंडमली क्वेश्चन पूछा करने हैं किसी ना किसी से। तो जो बंदा मुझे वापस आंसर नहीं दे रहा होगा मेरे अकॉर्डिंगली वो लेक्चर में नहीं है। तो आप कनेक्टेड रहो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर कनेक्ट हो जाओ, कोई इशू नहीं है। बाद में ये सब वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे शायद किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्ड करूँ लेक्चर और आप लोगों को भेज दूँ। सो द पॉइंट इन दिस होल थिंग इज द पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। तो जब तक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे होंगे, मुझे उनको समझाना नहीं पड़ेगा, तब तक आपको ये सारे का सारा टॉपिक्स जो है ये समझ नहीं आएंगे। ओके, कमिंग बैक, वी डिस्कस्ड अबाउट सैम्पलिंग। सर एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था सर, अगर कोई भी कोई ऑडियो सुनेगा तो सर उसकी यही प्रेफरेंस होगी कि वो ऑडियो हाई क्वालिटी हो, ठीक है ना? तो सर फिर हम सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि अगर हर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम हाई क्वालिटी ऑडियो सुने, तो उसके लिए तो ज्यादा सैंपल ही इकट्ठे करने चाहिए, तो कम सैंपल क्यों इकट्ठे करने? यस सर, ये कहना चाहिए। यस सर, जी सर। देखो जी सर, अब एक बात हमने डिस्कस की थी जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि कंप्रेशन, हमने कहा था व्हाई डू वी प्रोसेस इमेजेस, उसके अंदर हमने एक जिक्र किया था कि जी कई दफा हमें ट्रांसमिशन के लिए कुछ चीजों को कंप्रेस करके भी भेजना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम व्हिच इज डेवलपिंग एन इमेज प्रोसेसिंग टूल फॉर अ मार्स रोवर, एक ऐसा रोबोट है जो मार्स पे जाना है एंड देन इट्स गोइंग टू ट्रांसमिट पिक्चर्स ऑफ मार्स फ्रॉम देयर, तो हमारी मर्जी तो ये होगी कि वहां से जनाब कोई 30 मेगापिक्सल की पिक्चर जो है ना वो जमीन पे आए, ताकि हमें पता लगे कि मार्स पे एक्चुअली है क्या। पर थिंक अबाउट कि 30 मेगापिक्सल की तस्वीर का साइज कितना होगा, एंड देन हाउ मच टाइम वुड इट नीड टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट प्लेस टू द अर्थ। तो वहां पे जाके हमारी सारी ख्वाहिशात जो है वो खत्म हो जाती हैं और हम सिर्फ कहते हैं कि यार किसी तरह पिक्चर ही नजर आ जाए, बस वही बहुत बड़ी बात होगी। तो द सेम वे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे यू गाइस आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव लेसर सैंपल्स, और आई शुड से द लीस्ट number of samples to just get an idea what that thing is, either be it an audio or an image or anything else. I hope मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अगर नहीं दिया तो आप मुझसे दोबारा पूछें। ठीक हो गया बेटा? Okay, so we have two different topics, sampling and quantization. So by sampling we mean the amount of information we have captured from that source. Now this time we say from the scene. And quantization is in how many levels have we saved that captured information. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कैमराज में मेगापिक्सल्स सुनते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स, मेगापिक्सल्स जो हम सुनते हैं, दैट आर एक्चुअली सैंपल्स और क्वांटाइजेशंस। उसामा जमील, उसामा जमील एब्सेंट है, कनेक्ट करके गायब है, ठीक हो गया। क्वांटाइजेशन यानी कि जो हम मेगापिक्सल्स हैं वो हमारी क्वांटाइजेशन है।
वलीद, Yes, sir. नंबर ऑफ पिक्सल्स, मेगा पिक्सल्स, ये हमारी सैंपल हैं या क्वांटाइजेशन है? The quantization. The Anish, number of pixels the sample होंगे. सर सैम्पलिंग ही होगी। ये सैम्पलिंग होगी। तो हमारे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, जब मेगा पिक्सल बढ़ते हैं, इसका मतलब किसी एक मोबाइल कैमरा के अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और किसी और के अंदर जो है वो 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, तो डेफिनेटली 20 मेगापिक्सल की इमेज के अंदर ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, मतलब कि ज्यादा सैंपल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पलिंग एक्चुअली डील करती है स्पेशल से, कि जो हमें सीन नजर आ रहा है वो सीन कितनी उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली गई, उसमें से 2 मेगापिक्सल इंफॉर्मेशन निकाली गई या 20 मेगापिक्सल इंफॉर्मेशन निकाली गई, दैट इज सैम्पलिंग। ये किसी का क्वेश्चन था? जी बेटा। सर फिर जो पिक्चर्स लेता है, फॉर एग्जांपल अगर 20 मेगापिक्सल का कैमरा तो पिक्चर्स लेता है, तो उनमें से वो चूज करता है कि ये वाली बेस्ट है, तो उसमें से सैंपल में से नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि आपका एक इमेज जो है वो उतने पिक्सल्स पे मुश्तमिल होता है, ज्यादा पिक्सल्स देना इट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप जो भी पिक्चर ले रहे हो उसके अंदर कितने सैंपल्स आ रहे हैं, दैट इज डिटरमिन्ड बाय कि आपका कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। यस, आप कम रेजोल्यूशन कर सकते हो, आपने कैमरे की सेटिंग में जाके आप नंबर ऑफ पिक्सल्स कम कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास शायद स्टोरेज स्पेस इतनी नहीं है, तो मैं रादर देन having an image of 4096 by 2048, I need to store only 1024 by say 8, पता नहीं क्या 92। जी आपका क्वेश्चन था? सर इसमें क्वांटाइजेशन भी ज्यादा होगी। मैं अभी क्वांटाइजेशन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल सिर्फ सैम्पलिंग डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वांटाइजेशन बाद में मैं समझाता हूँ। So this is when we multiply these values, this becomes the number of पिक्सल्स और नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जो हम वहाँ पे रेजोल्यूशन की सेटिंग करते हैं अपने कैमरा की एप्लीकेशन में, दैट इज द रेजोल्यूशन, वी फिक्स द रेजोल्यूशन। बाय रेजोल्यूशन वी मीन हाउ मेनी सैंपल्स वी वांट टू कैप्चर आउट ऑफ दैट सीन। तो अगर मैं जो है उसको रिड्यूस करके 1024 इंटू जो भी उसके साथ दूसरी वैल्यू बनती है उस वैल्यू पे ले आऊँ, जबकि उसके कैमरे की इस्तेदाद जो है वो 4096 इंटू 2048 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब कम सैंपल्स कैप्चर करना चाह रहा हूँ। ये बात समझ में आई है? तो सर इससे तो क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। जी हाँ, मेरा ख्याल है वो पहले जो बेटा क्वेश्चन किसी ने पूछा था उसमें मैंने यही बात बताया था, शायद अज़का ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें ज़रूरत ही अच्छे इमेजेस की या अच्छी ऑडियोज की है, so why are we talking about sampling? And I replied, yes, that is the maximum we need, but there are times when we need the least information just to have an idea about that thing. So yes, आप ये हरकत कब करोगे, आप ये रिड्यूस करने वाला काम कब करोगे, आपने कैमरे में कब ये ऐसा काम करोगे? जब आप नहीं चाह रहे होगे कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो रिजर्व हो जाए फॉर इमेजेस, तभी आप करोगे ना बेटा। And when you do Yes, this, sir, yes, of course, this image marked as number 1 would be bad in quality as compared to this image which is numbered as 2. Of course, क्योंकि now we have lesser samples. बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह मैं आपके लिखे गए आंसर का एक एक लफ्ज पढ़ूं या मैं 2-2 लाइन स्किप करके एक लफ्ज पढ़ूं, तो ऑफ कोर्स जब मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा होगा तो मुझे बड़ा क्लियर आइडिया होगा कि आपने क्या लिखा है, एज कम्पेयर टू कि मैं स्किप कर करके दरमियान में से पढ़ा हूँ। सो ऑल आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर वाज अबाउट सैम्पलिंग। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट सैम्पलिंग इज। स्टिल अगर किसी को समझ नहीं आई, he or she can ask me. So ultimately, सर ये जो वैल्यूज होंगी, जी बेटा, जो इमेज की वैल्यूज होंगी जो हमारे पास, तो सर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी में होगी या फिर वैल्यूज में होगी? ये बेटा ये वैल्यूज में होंगी। उसी पॉइंट पे अब मैं आ रहा हूँ जो कि है क्वांटाइजेशन। जिस तरह मैंने इस इमेज का जिक्र किया कि यहाँ पे हमने सैंपल्स तो डिस्कस कर लिए सारे के सारे इस इमेज के अंदर। जब टाइम आया इनको वैल्यूज देने का, क्वांटाइज करने का, तो वी हैड 8 लेवल्स ओनली। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपके पेपर का
डिस्कशन की 0 से 100 तक और 0 से 10 तक। तो अगर 0 से 10 तक स्केल होगा तो मार्क्स जो हैं वो 0 से लेकर 10 तक ही हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते। और अगर जो मेरा मार्किंग का स्केल है वो 0 से 100 तक है तो मार्क्स आपके 0 से लेकर 100 तक कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर थी। बिल्कुल इसी तरह जब टाइम आता है इस बात को डिस्कस करने का कि चलें ये तो समझ आ गई कि जो सैंपल्स हैं दीज आर द नंबर्स ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 4096 है तो इसका मतलब है कि 4096 रोज हैं और 2048 कॉलम है। ये तो समझ में आ गया, ये तो हो गई इतनी लोकेशन। लेकिन अब हर लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू किस रेंज में होगी, दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटाइजेशन। लेवल्स कितने डिसाइड किए। सो नॉर्मली जितने इमेजेस अभी हमने पढ़े हैं टिल द कलर चैप्टर, हम ये कहते हैं कि 256 ग्रे लेवल्स होंगे। अगर 256 ग्रे लेवल्स होंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 255। ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ग्रे स्केल इमेजेस की बात करेंगे, उसी हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ लेवल्स टू स्टोर एन इमेज आर 256 टू सेव द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें मजीद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सो सैम्पलिंग इज एक्चुअली द डिजिटाइजेशन ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, rows and columns. The more samples you have means more samples you have means more pixels you have. The more pixels you have, actually more rows and columns you have. और इसी तरह आपका इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास एक इमेज है जो 1024 by 486 है तो वो इमेज छोटा है एज कम्पेयर टू एक ऐसे इमेज के जो 4096 by 1024 है, वो बहुत बड़ा इमेज है, उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स भी ज्यादा है। सो सैम्पलिंग इज अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। और स्पेशल कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लफ्ज पहले भी यूज किया था कि जहां पे भी हम एक इमेज को रो और कॉलम की मदद से डिस्क्राइब करेंगे दैट इज स्पेशल डोमेन, और जहां पे हम वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के तौर पे डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सीएस के लोगों को मैं सिर्फ स्पेशल डोमेन तक ही महदूद रखूंगा। जब बात आती है क्वांटाइजेशन की, सो क्वांटाइजेशन इज एक्चुअली द डिजिटाइजेशन इन एम्पलीट्यूड वैल्यू, कि उस जगह पर उस पिक्सल की वैल्यू क्या है, यानी कि ग्रे लेवल क्या है। सो क्वांटाइजेशन के अंदर एक मशहूर लेवल है 8 बिट क्वांटाइजेशन। मतलब ये हुआ कि हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए। तो 8 बिट्स के अंदर हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि 8 बिट के अंदर छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी जी उसामा? 0, ऑल जीरोस 0। और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 255. Yes, when all are 1, all the 8 bits are 1, it becomes 255. So 0 and 255 included, it becomes 256 gray levels. और ये हमें एक और तरह से भी पता लग जाता है कि जब हम बाइनरी में 2⁸ नंबर ऑफ बिट्स निकालें तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितने ग्रे लेवल्स बनेंगे। तो जब सारे 0 हों या जब सबसे छोटी वैल्यू 0 दैट रिप्रेजेंट्स प्योर ब्लैक, और जब सब 1 हो द मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट्स प्योर वाइट। और एक और मशहूर क्वांटाइजेशन है जिसको हम बाइनरी कहते हैं, और हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी बाइनरी इमेजेस देखे हुए थे। दे आर नोन एज 1 बिट क्वांटाइजेशन, कि वहां पे एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए सिर्फ 1 बिट चाहिए। जब सिर्फ 1 बिट होगी तो उस बिट की वैल्यू या 0 होगी मींस ब्लैक, या 1 होगी मींस वाइट। तो ये बात सारी है क्वांटाइजेशन की। और कॉमनली यूज्ड नंबर ऑफ सैंपल जो रेजोल्यूशंस यूज होती हैं हमारे
मोबाइल कैमराज में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं बेस्ड ऑन द megapixels being packed into the same camera. So it started with suppose 640 by 480 and now we are talking about 4064 into 2704 and so on, more than that. Similarly, normal digital video cameras, they take a picture of size 640 by 480 and then 30 frames per second. तो जो मूवी होती है which seems moving, वो तब स्टार्ट हो जाती है जब आपके सामने से 14 इमेजेस पर सेकंड गुजारे जाएं तो आपको वो चीज मूव होती फील होती है. एंड द मोर नंबर ऑफ इमेजेस पर सेकंड्स मूव फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू, द मोर मूविंग इफेक्ट यू विल गेट. तो आपने कई दफा देखा होगा वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे कुछ लोग वो एक कॉपी बेच रहे होते हैं, उस कॉपी के पेजेस को जब आप टर्न करते हो स्पीड में तो आपको उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता नजर आता है. तो उसकी रीजन ये होती है कि उसके हर पेज के ऊपर एक सपोज फ्रेम का सीन होता है और जब वो सारे के सारे मिलते जुलते सीन एक खास स्पीड से आपकी आंख के सामने से गुजरते हैं तो आपको उसको मूव होता फील होता है. सिमिलरली अगर आपने कभी कैमरे का बस शॉट यूज किया हो और कोई बंदा मूव कर रहा हो और अगर आप सिस्टम पे बैठ के भी उसको तेजी से नेक्स्ट पिक्चर क्लिक करें तब भी वो आपको एक मूविंग इफेक्ट मिलता है. और ये मूविंग इफेक्ट बेहतरीन हो जाता है जब ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आ जाए. और जब हम HD टीवी की बात करते हैं, हाई डेफिनेशन टीवी की बात करते हैं या हाई डेफिनेशन मूवी की बात करते हैं तो वहां पर यही फ्रेम्स पर सेकंड की तादाद और बढ़ जाती है जिससे हमें वो मूवी का इफेक्ट और ज्यादा बेहतर फील होता है. तो अब 60 फ्रेम पर सेकंड एंड इवन मोर देन दैट इज अ नॉर्म these days. So a movie or a video is actually a huge collection of images. उसी सीन के जब आप पर सेकंड 30 पिक्चर्स लेना शुरू कर देंगे और इनको इकट्ठा प्ले करेंगे, that would become a movie, a video of the scene. Hopefully यहाँ तक हमें सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन क्लियर हो चुकी है. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर आपने बताया ना कि 256 ग्रे लेवल्स होते हैं जिसमें 0 पे ब्लैक और 255 पे वाइट होता है. जी. तो अगर इनके इन बिटवीन आ जाए तो वो कलर होंगे? नहीं बेटा, वो ग्रे के शेड होंगे. सो फिलहाल मैंने कहा था कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कलर की बात नहीं कर रहे. सो 256 ग्रे लेवल्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहला लेवल स्टार्ट होगा वो 0 पे, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू 255. तो ये हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं. यस, 0 जो है वो प्योर ब्लैक है और 255 जो है वो प्योर वाइट है. इसी तरह अगर मैं बात करूं 128 की तो 128 एक मिडल ग्रे शेड है, दरमियाना ग्रे शेड. इसी तरह बाकी वैल्यूज के पास हर एक के पास अपना अपना शेड से वो रिप्रेजेंट की जाएगी. हर वैल्यू डिफरेंट शेड से रिप्रेजेंट की जाएगी. ये बात आप दोबारा मुझसे 3-4 स्लाइड्स के बाद पूछ सकती हैं अगर आपको समझ ना आए, क्योंकि अगली 3-4 स्लाइड्स के अंदर यही कुछ डिस्कशन है. और कोई क्वेश्चन? सर जब हम कहते हैं 640 तो इसका मतलब 640 सैंपल है पहली रो में? नहीं बेटा, 640 का मतलब है कि 640 रोज है. 640 रोज हैं, 480 कॉलम्स हैं. तो नंबर ऑफ पिक्सल कितने हुए? सर 640 into 480. बिल्कुल, वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं. बिल्कुल सही कहा. तो पहली रो में 480 सैंपल्स होंगे. बिल्कुल, पहली रो में 480 सैंपल्स होंगे, दूसरी रो में भी 480 सैंपल्स हैं. इसी तरह करते करते तमाम रोज में 480 सैंपल पड़ेंगे. और इसी तरह अगर आप मुझे कहेंगे पहले कॉलम में 640 सैंपल पड़ेंगे. Yes, अभी शायद आप अगर आप ये अगेन आपको मैं यही कहूंगा कि आप ये क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो 3 से 4 स्लाइड्स के बाद आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं. यस सर. और कोई क्वेश्चन? सर इसमें अभी तक हमने सैंपल का साइज कोई डिस्कस नहीं किया कि सैंपल कितना प्रोलॉन्ग होगा. मतलब हम सिर्फ एज्यूम करेंगे 480 सैंपल्स है. देखो बेटा, हमने एक बात की है कि एक तो नंबर ऑफ सैंपल्स है. अब नंबर ऑफ Yes. सैंपल्स को चाहे आप वैसे मुझे तादाद में बता दो या आप नंबर ऑफ सैंपल्स को रो इनटू कॉलम के प्रोडक्ट के हिसाब से बता दो, दैट मींस द सेम थिंग. अगली बात ये आती है कि हर सैंपल की वैल्यूज कितनी हो सकती है. तो मैंने वो भी डिस्कस कर लिया है.
कि हर Yes, सैंपल sir. की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर मैं 8 बिट क्वांटाइजेशन यूज कर रहा हूं तो। Yes, sir. और अगर मैं 1 बिट क्वांटाइजेशन यूज कर रहा हूं तो आपके सैंपल्स की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, जैसे कि हमने बाइनरी इमेजेस देखे थे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। Yes, sir, देखे थे. ठीक है जी। Yes, sir, clear हो गया. ठीक है जी। So we have an m cross n digital image. अब ये जो m cross n है, m means the number of rows and n means the number of columns. तो इसका मतलब ये हो गया कि रोज चूंकि इस साइड पे होती हैं, अगर आपको भूल गया हो तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये आखिरी रो है। इसी तरह जो कॉलम है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये आखिरी कॉलम है। और हर एक रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पर पिक्सल है, यानी कि पिक्सल की वैल्यू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज के अंदर जो आपको रो नंबर्स नजर आ रहे हैं ये चल रहे हैं 0 से लेकर m-1 तक। तो चूंकि हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई थी उनके अंदर हमने इंडेक्सेस को देखा है कि वो स्टार्ट होते हैं 0 से, इसीलिए यहाँ पे रो को स्टार्ट 0 से किया हुआ है। तो ये जो 0th रो है दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रो, तो फिर आखिरी रो जो है वो m-1 हो जाएगी। लेकिन मैटलैब में ये आसानी है कि मैटलैब के अंदर आपके पास जो इंडेक्सेस हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैटलैब में आपको वो 0th रो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्ट्रेट अवे कहते हैं फर्स्ट रो, उसका इंडेक्स भी 1 ही होता है। यहाँ पे अगर हम गौर करें कि ये पहला पिक्सल है जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया रेड से, जो पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे पड़ा हुआ है। उसके बाद अब जिसको मैंने रेड किया है ये किस रो और किस कॉलम के इंटरसेक्शन पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। गलत। थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब ये हमें गलतियां इसलिए लग रही हैं क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैटलैब में हमें ये आसानी हो जाती है। मैटलैब के अंदर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो जो भी हो मैटलैब वो दूसरा हो, ये हमारे पास ये जो लोकेशन है ना इसकी लोकेशन बनती है 2,3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। इसी तरह ये पहली रो थी और ये दूसरी रो है, तो इसलिए ये 2,3 पे पड़ा हुआ है। ये बात आप लोगों को समझ आई जी? Yes, sir. अब ये मेरे सामने इस वक्त इस इमेज के m क्रॉस n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो अगर फर्ज करते हैं कि m भी 100 था और n भी 100 था, तो इसमें पिक्सल्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 10,000 पिक्सल्स होंगे मेरे पास इस इमेज के अंदर। अगर इस इमेज का साइज 100 बाई 100 था तो इसके अंदर 10,000 पिक्सल्स थे। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं ये लोकेशन के बारे में। अब हमने ये बात भी करनी है कि इन पिक्सल की वैल्यू क्या होगी। तो दैट डिपेंड्स कि ये इमेज कितने बिट का इमेज है। अगर ये इमेज 8 बिट का इमेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर पिक्सल को सेव करने के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए, और 8 बिट जो है बेसिकली वो 1 बाइट बनता है। तो इस इमेज को सेव करने के लिए कितने बाइट चाहिए? 1 बाइट। 10,000 बाइट। 1000 बाइट। जितने सैंपल हैं उतने बाइट। यस, 10,000 बाइट्स। यस, 80,000 बिट्स। 80,000 बिट्स और 10,000 बाइट्स, इतनी हमें जगह चाहिए इस इमेज को सेव करने के लिए, अगर ये 8 बिट सिस्टम है। तो इसी से मैं आ जाता हूँ कुछ क्वेश्चंस करने पे जिनसे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इन क्वेश्चंस को बड़े गौर से आपने साथ साथ अपने पास नोटबुक के ऊपर करना है, बिकॉज यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है।
और इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करूं तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख दें। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख दें। ओके, थैंक यू जी। सो वी वर डिस्कसिंग के अगर सपोज हमारे पास एक इमेज है जो 100 बाई 100 का था, उसकी 100 नंबर ऑफ रोज थी और 100 नंबर ऑफ कॉलम्स थे, तो वो कितना साइज लेगा? क्वेश्चन ये है कि वो उसका साइज कितना होगा, स्टोरेज साइज कितना होगा। अब यहाँ पे ये बताना भी, ये तो जो मैंने बता दिया 100 बाई 100, 100 बाय 100 तो एक्चुअली है नंबर ऑफ सैंपल्स, ये तो नंबर ऑफ सैंपल्स है। तो क्वांटाइजेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई? मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा जी क्वांटाइजेशन लेवल्स। मैंने यहाँ पे कहा जी 8 बिट, 8 बिट कह दूं या 256 कह दूं, एक ही मतलब है इसका। 256 डिफरेंट लेवल्स हैं या मैं कह दूं कि हर एक के लिए 8 बिट्स है। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स is 100 into 100 which means 10,000. Storage for 1 pixel is 8 bit. Storage for 10,000 means मैं इसको 10K लिख देता हूँ आसानी के लिए। तो मैं बजाय कि वो 1024 वाला K मैं सीधा वो 1000 वाला K जो नॉर्मली यूज किया था वो लिख दिया मैंने। तो 10K सैंपल्स के लिए क्या होगा जनाब? 10K इंटू 8, ये नंबर ऑफ बिट्स होंगी 80K बिट्स, या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हमारे पास बन जाएगा 10 किलो बाइट। ये समझ आ गया जी आप लोगों को? ये मैंने कैसे सॉल्व किया? यस सर। जी सर। तो आप सब लोग समझ गए। अच्छा बेटा, आप ये मुझे बताओ कि अगर इसी साइज का इमेज होता और मेरे पास जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो सिर्फ 1 बिट होता, तब इमेज का साइज क्या था? 10,000 के 10,000। हाँ जी बेटा, 10,000 वाट। स्टोरेज का यूनिट क्या है? बिट सर। अच्छा, 10,000 बिट्स। ठीक कहा आपने कि अगर मेरे पास जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो 8 बिट की बजाय यानी कि 256 ग्रे लेवल्स की बजाय सिर्फ 1 बिट यानी कि 2 ग्रे लेवल होता, तो मेरे पास स्टोरेज की रिक्वायरमेंट इसी इमेज की जो कि 100 बाई 100 का है रह जाती सिर्फ 10,000 बिट्स। यानी कि कितने बनते हैं? 1 पॉइंट समथिंग किलो बाइट। 10 KB तो बेटा इस वक्त है ना, 10 KB तो इस वक्त है। तो अगर 1 बिट होती तो मेरे पास जो है 1.2 समथिंग किलो बाइट बच जाता सिर्फ। एग्रीड हैं जी इससे सारे? ये इसमें कोई परेशानी है? एग्रीड जी? कोई हाँ ना में जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का यार। यस सर। एग्रीड, गुड हो गया। ओके, लेट्स सॉल्व one other one. If we have an image with the size suppose 120 into 100 and we have a 3-bit system. अब ये कौन सा सिस्टम होगा भाई जो 3 बिट होगा? इसमें कितने ग्रे लेवल होंगे? कितने ग्रे लेवल होंगे इसमें? 8 हो सकता है। 8, because 2 raised to power 3 gives you 8 gray levels and those gray levels are 0 to 7 both included. तो बेटा जी मुझे इसका स्टोरेज बताओ कितनी होगी?
120 into 100 into how many? 8. कितने लिखूं यहाँ पे? 3 sir. 3, because the bits are to be written here. 3. So this is the total number of bits. When it's divided by 8, it becomes the total number of bytes. When divided by 1000, it becomes the number of kilobytes. So ये आप calculate कर लोगे. So for the sake of simplicity, मैं इधर 1024 जो कि actual k की representation है वो use नहीं कर रहा हूँ. For the sake of simplicity, मैं सिर्फ k को 1000 गिन रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी चीजें solve हो जाए. उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ बिट बढ़ा देने से स्टोरेज कितने गुना बढ़ जाती है. तो ये पहले भी मुझे किसी ने बात की थी कि क्वालिटी अगर हमें अच्छी ही चाहिए तो हम लोगों को यूज करें. नाउ सी कि जैसे आप क्वालिटी को बेहतर करते हो, क्वालिटी को बेहतर जो है वो आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी कर सकते हो, यानी कि सैंपल्स में भी कर सकते हो और क्वांटाइजेशन में भी कर सकते हो. तो सैम्पलिंग का भी रिलेशनशिप है स्टोरेज साइज से और क्वांटाइजेशन का भी रिलेशनशिप है स्टोरेज साइज से. जितने क्वांटाइजेशन लेवल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होंगी आपको हर सैंपल को सेव करने के लिए. और ऑफ कोर्स जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतनी ज्यादा जगह चाहिए होगी आपको उसको सेव करने के लिए. So you guys have to repeat the same exercise for different examples which you can create by your own, ranging from an image of suppose 1024 by 1024, and this image can be of 1 bit, 4 bit and 8 bit. ये आपने इसको solve करना है. And then you have to repeat the same question with a storage of, sorry, with the sample size of 256 by 256. The same questions. So ये 6 samples आपने अपने पास रफ में as a to do work आपने अपने पास ही कर लेना है, so that everything becomes clear to you guys. सर बिट्स की तो सर समझ आ गया सर. वो बाइट्स में किस तरह निकलेगी वो जरा थोड़ी बहुत. बेटा मैंने सीधा 8 से डिवाइड किया ना तो बाइट बन गए. अच्छा ठीक है. तो सर 8 से डिवाइड किया तो बिट बन गए. सॉरी स्टोरेज निकलेगी ना? स्टोरेज. हाँ बेटा ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है जी. और कोई क्वेश्चन? Okay, let's move forward. Here we can see an image and we can see 0 0 as the first place, so this is not valid for MATLAB. As I told you earlier, in MATLAB we use 1, 1. So we can see an image here जिसकी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, बट व्हाटएवर इट इज ये तकरीबन 2-3 लाख पिक्सल्स है जो हमें नजर आ रहे हैं इसमें. सो द पिक्सल्स व्हिच आर समवेयर हियर जहां मैंने टिक किया है, they will be white carrying a value near about 255 because they are white, and all those pixels probably here would be something like 30-40 values, and anything black, exact black जो यहाँ पे हमें कहाँ दिख रही है, these values will be 0 or near about 0. That's the reason why this region is looking black. किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फिर बाकी वैल्यूज कैसी दिखेंगी. So this image contains all different values of gray levels. तो जो बिल्कुल 255 और उसके करीब वैल्यूज थी वो हमें प्योर वाइट दिख रही हैं. फिर जो कम वाइट दिख रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है. जो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 है. जो कम ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 20, 30, 40, 50 के करीब है, एंड सो ऑन. लेकिन एक बात मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन की लेक्चर में ये की थी कि ह्यूमन बीइंग्स को ग्रे स्केल इमेज देखने के बाद 24 से ज्यादा ग्रे लेवल्स के दरमियान फर्क फील नहीं होता. सो हम ह्यूमन बीइंग्स को अगर हमें वैल्यू दिखाई जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी एक जैसी दिखेगी. हाँ, अब अगर हमें दिखाया जाए 0 और 20 तो हम कहेंगे हाँ इसमें फर्क है. तो यानी यहाँ पे जहाँ पे 256 लेवल हैं, 0 से लेके 256 लेवल हैं, हमें इसके 24 टुकड़ों का सिर्फ अंदाजा है. यानी कि 0 से लेके अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0 से लेके 12 तक शायद हमें एक ही ग्रे स्केल दिखता है. हमारी ह्यूमन आई को एक ही ग्रे स्केल दिखता है. इसी तरह
13 से लेके शायद 49 तक हमें एक ही ग्रे लेवल दिखता है, जबकि यहाँ पे अगर कलर होते तो हम हजारों कलर के दरमियान फर्क कर सकते हैं, इसीलिए हम कलर्स के दरमियान ज्यादा फर्क कर पाते हैं। बेटा हम्बल उठ के बैठ के पढ़, सोते हुए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब अगर हम बात करें मैटलैब की रिप्रेजेंटेशन की, तो मैटलैब जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,1 और ये हमारे लिए आसान है कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। जिस तरह आपको गलती लगी थी, मैंने आपको पूछा कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, तो आप सब ने जो है वो 1 के हिसाब से उसका नंबर बता दिया। तो यहाँ पे ये लोकेशंस मार्क की गई हैं कि ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है, दूसरी रो आखिरी कॉलम है, एंड सो ऑन। ये मैटलैब की रिप्रेजेंटेशन है। ये तो मेरे ख्याल अब आपको बात समझ आ गई होगी। Okay, digital images are normally represented as 2D arrays, two-dimensional arrays or 2D matrices, and these are matrices composed of numbers. और वो नंबर किस रेंज में है? That is actually defined by the quantization level. तो वो नंबर जो है उन पिक्सल्स के वो 0 से लेके 255 होंगे अगर डिफाइन किया गया है कि इसके क्वांटाइजेशन लेवल 8 है, सॉरी 8 बिट है। अगर इसके क्वांटाइजेशन लेवल 8 बिट हैं तो वैल्यूज हमें 0 से लेके 255 की रेंज में नजर आएंगी। अब जिस तरह ये एक इमेज है, अगर मैं इस इमेज के इन पिक्सल्स की वैल्यूज को देखूं तो ये सारी की सारी ब्लैक है, तो ये 0 या उसके करीब की है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, एक सर्टन रेंज को, जो छोटी सी रेंज है, इतनी सी रेंज को यहाँ पे दिखाया गया बड़ा करके। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं, 131, 135, 129, 176 मुख्तलिफ रेंज की वैल्यूज। तो विद इन दैट स्मॉल एरिया which I have indicated with this red color, we have all those different values. और ये different values हैं, they are representing different pixels. ये जो भी आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है, इस स्लाइड की अंदर 5 पिक्चर्स हैं, बल्कि 6 पिक्चर्स हैं, और इन 6 पिक्चर्स के अंदर सेम सीन है। फर्क किस चीज का है? हम्बल, इन सारी पिक्चर्स के अंदर फर्क क्या है? साइज में सर, रेजोल्यूशन। Size means resolution, exactly, and resolution actually means number of samples. Resolution actually means the number of samples. तो जो पहली इमेज है वो 1024 बाय 1024 की है, यानी कि तकरीबन कितने पिक्सल बने? ये 10 लाख शायद बने। तो ये पहली इमेज जो है ये 1024 रोज और 1024 कॉलम्स पे मुश्तमिल पिक्चर है, जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब पिक्सल। सिमिलरली पिक्चर नंबर 2 जो है ये 512 मल्टीप्लाइड बाय 512 इस साइज की है, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख पिक्सल। सिमिलरली हमारे पास 256 बाई 256, 128 बाई 128, 64 बाई 64 और 32 बाई 32। उसी सीन का देखें कितनी वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जैसे जैसे आप वो रेजोल्यूशन या नंबर ऑफ सैंपल्स या मेगा पिक्सल्स बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी पिक्चर जो है वो बड़ी होती जाती है। अब ये जो बड़ी होती जाती है, इट इज बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एज वेल एज डिस्प्ले। दिखने में भी वो बड़ी होती जाती है और इसी तरह उसके स्टोरेज साइज भी बढ़ता जाता है। स्टोरेज साइज तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको आइडिया हो गया कि 100 बाई 100 का 8 बिट का इमेज होगा तो वो कितनी जगह लेता है, और 1000 बाई 1000 का अगर एक 8 बिट का इमेज होगा तो वो कितनी जगह लेगा। ये तो रिलेशनशिप आपको समझ आ गई। अब अगर मैं इन तमाम इमेजेस को एक ही स्केल पे देखना चाहूँ, जिस तरह हमारे पास इमेज व्यूअर्स जितने होते हैं उनके अंदर जूम करने की ऑप्शन होती है, फिट टू स्क्रीन कर दूं। अगर मैं 1024 को भी, 512 बाई 512 को भी, 256 वाले को भी, सबको फिट टू स्क्रीन कर दूं और वो एक ही साइज पे दिखें, तो ये इमेज मुझे इस तरह दिखेंगे। अब ये जो आखिरी इमेज है, जो कि एक्चुअली 32 बाई 32 का था,
और इसको दिखाने की गर्ज से 1024 बाई 1024 पर जूम करके लाया गया, तो इसका मतलब है कि इसके अपने पिक्सल तो 900 कुछ पिक्सल्स थे, और इनको 900 पिक्सल्स को जब 10 लाख पिक्सल्स बनाना हो तो हम क्या करेंगे? कोई मुझे आइडिया दे, या आसान काम मैं कर लेता हूँ। अगर ये 512 बाय 512 को मुझे लेके आना हो इस स्केल पे जिस पे मैंने दिखाया है 1024 बाय 1024, तो मुझे क्या करना होगा? सर हाफ ये कर देंगे। 512 है उसको बड़ा कर देंगे, एक पिक्सल को बड़ा कर देंगे। अब पिक्सल को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता। पिक्सल को बड़ा करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसकी कॉपीज बना देंगे। देखें, इसके दरमियान फासला बना देंगे? नहीं बेटा, फासला नहीं करेंगे हम। बेसिकली देखो, 512 बाई 512 की पिक्चर थी, यानी कि 2.5 लाख पिक्सल थे, लेकिन उसको जब हम जूम करते हैं तो उसका साइज बन जाता है 1024 बाई 1024, मतलब 10 लाख पिक्सल आ जाते हैं। तो बाकी 4 गुना पिक्सल्स आए कहाँ से? यानी कि जो 3 टाइम्स जो पिक्सल है वो नए कहाँ से आए? वी हैव टू क्रिएट देम आर्टिफिशियली। और वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? दैट यू स्टार्ट कॉपीइंग द पिक्सल्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूं, मेरे पास ये इमेज था जो 512 बाई 512 का था, और अगर मुझे कहा जाए कि इसका 1024 बाई 1024 बना दें, तो मैं करूंगा कि ये कि यहाँ पे जो एक वैल्यू है उसको 4 दफा रिपीट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फिर अगली वैल्यू को पिक करूंगा, 4 दफा रिपीट कर दूंगा, फिर उससे अगली वैल्यू को पकड़ूंगा, एंड सो ऑन। तो ये मुझे सैंपल्स खुद से क्रिएट करने पड़े, और यही फीचर जूम के पीछे, जो हम जूम का बटन दबाते हैं, प्लस का साइन दबाते हैं इमेज को बड़ा करके देखने के लिए, उसके बिहाइंड यही चीज बनी होती है। और इसको हम अप सैम्पलिंग भी कहते हैं, कि हम अप सैंपल कर रहे हैं, आर्टिफिशियली खुद से सैंपल्स जनरेट कर रहे हैं। बिकॉज जब मैं जूम करता हूँ तब तो नई पिक्चर नहीं ली जाती, पिक्चर तो वही रहती है जो पहले थी। और अगर वो इमेज बहुत छोटी हो और उसको मैं जूम करता जाऊं तो मुझे उसके अंदर टाइलिंग का इफेक्ट नजर आता है, टाइल्स बनी हुई नजर आती है, और यही इफेक्ट आपको यहाँ पे इस इमेज के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा इमेज है। जी बेटा। तो सर इमेज की क्वालिटी फिर क्यों मतलब खराब हो जाती है? अगर पिक्सल अगर हम कॉपी भी कर रहे हैं तो खराब क्यों हो जाती है? मतलब बिकॉज नेचुरली वैसे एग्जिस्ट नहीं करता ना। देखो, आपने 900 पिक्सल से अगर आपने 10 लाख पिक्सल बनाने हो तो इसका मतलब है कि आप एक एक पिक्सल को 600 दफा कॉपी कर रहे हो, ऐसे ही है ना? जी सर। जब आप 600 दफा कॉपी कर रहे हो तो वो 600 की कलेक्शन जो है वो आपको एक टाइल दिखेगी, तो उसके अंदर आप कहते हो कि जी इमेज फटी हुई फील हो रही है। वो फटी हुई इमेज इसलिए फील हो रही है कि आपने उस पिक्सल को इतनी दफा कॉपी कर दिया हुआ है कि वो खुद से एक बॉक्स बन गया। और आज आप किसी भी सिस्टम के ऊपर अभी से किसी छोटी सी पिक्चर को जूम करते जाओ, देखते जाओ, वो आपको जूम करने की फैसिलिटी देता जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे तो कोड रन हो रहा है। और कोड का काम सिर्फ इतना सा है कि आप जब भी जूम का बटन क्लिक करते हैं तो वो उतनी पिक्सल्स की कॉपीज ऑटोमेटिकली मजीद जनरेट कर देता है। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाएंगे तो इमेज की क्वालिटी डिटोरिएट करेगी। हाँ, वहां पे आपको फील नहीं हो रहा जहां पे 512 बाई 512 की जो पिक्चर थी जिसपे मैंने भी क्वेश्चन मार्क बनाया है, वो आपको बुरी फील नहीं हो रही। द रीजन इज कि एक पिक्सल का साइज इतना छोटा है कि अगर आपने उसकी 4 कॉपीज बना भी दी हैं तो आपको इतना फील नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आप उसकी कॉपीज की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि इमेज की क्वालिटी जो है वो बुरी होगी। सो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस हियर वाज कि लेसर रेजोल्यूशन इमेज से ज्यादा रेजोल्यूशन की इमेज जनरेट करना मींस कि जूम या रीसाइज, इनके पीछे क्या साइंस होती है। और टाइलिंग का इफेक्ट आपको कब नजर आता है? जब आप बहुत ज्यादा कलेक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें तो आपको वो टाइलिंग का इफेक्ट नजर आना स्टार्ट हो जाता है। इस हद तक बात समझ आ गई? मजीद आगे चलते हैं। इस स्लाइड के ऊपर पहली रो में जो हमारे सामने इमेजेस दिए गए हैं, इन इमेजेस के दरमियान जो चीज मुश्तरक है वो ये है कि सबके 256 ग्रे लेवल है। मतलब ये कि क्वांटाइजेशन लेवल सबके सेम है। और फर्क क्या है सैंपल्स का? वही एग्जांपल जो पीछे दिखाई गई थी। पहली इमेज 250 बाई 210 की है, दूसरी इमेज 125 बाई 105 की थी ओरिजिनली, लेकिन अब 250 बाई 210 की करके दिखाई गई। सिमिलरली तीसरी इमेज 50 बाई 42 की थी, लेकिन इसको अप सैंपल करके 250 बाई 210 की करके दिखाया गया।
लास्ट पिक्चर जो है ये ओरिजिनली 25/21 सैंपल्स की थी, लेकिन इसको अब 250/210 करके दिखाया। ये तो एग्जैक्टली वही एग्जांपल रेप्लिकेट हो गई जो पिछली स्लाइड के ऊपर थी। नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। अब अगली रो के अंदर जो फर्क क्या आ रहा है, सैंपल्स की तादाद सेम है, ग्रे लेवल चेंज कर दूंगा। यानी कि इस इमेज के अंदर, जिसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ, 256 ग्रे लेवल्स थे। नंबर 2 के अंदर सिर्फ 16 ग्रे लेवल्स थे। नंबर 3 के अंदर सिर्फ 8 ग्रे लेवल्स थे। नंबर 4 के अंदर सिर्फ 4 ग्रे लेवल्स थे। नंबर 5 के अंदर सिर्फ 2 ग्रे लेवल रहे। तो नंबर 1 इमेज को सेव करने के लिए हर पिक्सल को 8 बिट में सेव करना पड़ता है। नंबर 2 इमेज को कितने बिट्स में सेव करना होगा? हमजा, नो आंसर। सर ये जी बेटा। 250 into 210 और फिर मल्टीप्लाई बाय ग्रे से हाँ, मैं बेटा सर बिट्स की तादाद पूछ रहा हूँ। एक पिक्सल के लिए कितनी बिट्स चाहिए अगर 16 ग्रे लेवल हो? 2 की पावर दानियाल सर 2 की पावर 16 चाहिए। सर 2 की पावर 4 चाहिए सर, सॉरी 2 की पावर 4 चाहिए। 2 की पावर 4 चाहिए जो कि 16 बनती है। तो ये कंफ्यूजन तुम लोगों की खत्म हो जानी चाहिए अब तक। 16 जो है वो ग्रे लेवल है और मैं पूछ रहा था बिट्स का। इसी तरह 8 ग्रे लेवल्स के लिए हमें 3 बिट, 2 बिट और 1 बिट। अब आप जरा गौर करें कि नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल रिड्यूस कर देने से भी क्वालिटी का बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि नंबर ऑफ सैंपल्स उतना ही है। नीचे वाली रो के तमाम इमेजेस के अंदर तकरीबन 5 लाख पिक्सल्स हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है कि हमने नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स जो उनको रिड्यूस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे मैं आपके पेपर की मार्किंग कर रहा था डिस्क्रीट वैल्यूज 1, 5 और 10 पे, तो ये सिचुएशन बन रही थी जो निचली रो में। और अगर मैं उनको पूरे नंबर दूं, पूरे स्केल के नंबर दूं 0 से लेकर 100 तक, तो वो एक बड़ी अच्छी पिक्चर बने जो कि ऊपर वाली पिक्चर है। तो नीचे वाली रो के अंदर जो वेरिएशन लाई गई है इमेजेस में, वो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स की है। अगर किसी को ये बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर पहले जो हमने वो जो डायग्राम आई थी पहली स्लाइड्स में, जिसके अंदर हमने एक लेवल के ऊपर करते जा रहे थे ग्रे को, यानी कि जो कोड जो सबसे करीब था सर, इससे पहले वाली स्लाइड जो 4 जिस पे बने हुए थे, मतलब फर्स्ट स्लाइड्स में, फर्स्ट स्लाइड पे आप उसमें क्या डिस्कस क्या हो रहा था सर? उसके अंदर ग्राफ्स बने हुए थे 4, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अच्छा सही है समझ गया। सर इसमें हमने बेसिकली यही किया है कि जो 2x2 पे जो आ रही है ग्राफ, सर इसी में यही किया है कि मतलब पहले में 8 लेवल थे तो अगले में 4 लेवल हो गए हैं। मेरा मतलब ये था कि अगर सपोज इस एग्जांपल में हम 4 लेवल 8 की बजाय 4 लेवल कर देते तो इमेज शायद बिल्कुल यूं होती, एक ही लेवल ये और एक ये और ये खत्म, दरमियाना वाले लेवल भी गायब हो जाते। बिल्कुल वैसे ही कि जिसको नंबर जो है वो 85 मिल रहे हैं वो भी 8 होता, और जिसको 83 मिल रहे हैं वो भी 8 होता, और जिसके 80 थे वो भी 8 होता। यस तो असाइनमेंट के लेवल कम हो गए ना। यस सर मैंने बस यही पूछना था। ठीक हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर अभी हमने बात की कि वो जो आपने फ्लावर वाली पिक दिखाई थी उसमें टाइल्स की फॉर्मेशन हो रही थी पिक्सल की कॉपी करने की वजह से। सही है। तो हम ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि हम पिक्सल को डिवाइड कर दें ना कि कॉपी करें एक पिक्सल को, क्योंकि ब्लर तो तब भी हो रही है उस तरह भी होगी। आपने सही बात की। देखो होता ये है कि जब शुरू में पढ़ाया जाता है ना तो हम बिल्कुल सिंपल बातें बताते हैं
बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे होते हुए को बच्चे को एक को अगर कोई पूरी एक्सप्लेनेशन दे दो ना तो वो आपको उससे अगला फिर अंदर से क्वेश्चन निकाल देता है। तो मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के आंसर दे रहा हूँ ना, आई एम आंसरिंग यू द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर सो फार, बट यस देयर आर अदर टेक्निक्स टू डू द सेम थिंग। और जब हम इस चीज के ऊपर आएंगे ना, वी विल नो कि इस काम को इंटरपोलेशन कहा जाता है। और इंटरपोलेशन के अंदर आपके पास नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन भी होती है, बाइलिनियर भी होती है, बाइक्यूबिक भी होती है। मैं सारी बातें अभी नहीं कर रहा, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ। तो फॉर सम टाइम बियर विद मी, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन मत पूछो, बट फॉर सम टाइम बियर विद मी, जब तक हम उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे ये चीजें डिस्कस होंगी। सो फॉर द टाइम वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज कॉपीइंग द पिक्सेल्स टू मेक अ न्यू बिगर इमेज, टू क्रिएट values artificially, ओके to zoom in an image, to resize an image. ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया सर। Okay. Now if we see this image, इसका साइज है 452 by 374, सारे इमेजेस का साइज 452 by 374। अब इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स जो है ना वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 256, ये 256 ग्रे लेवल्स वाला इमेज है, ये 128 वाला है, ये 64 वाला है, ये 32 वाला है। तो फर्क फील हो रहा है इनके दरमियान? कोई फर्क फील हो रहा है आप लोगों को? नो सर, इतना ज्यादा नहीं फील हो रहा, अगर आप गौर से देखें तो शायद थोड़ा बहुत पता चल जाए। सॉरी क्या, दोबारा बताइएगा। सर मैं ये कह रहा था इतना ज्यादा नहीं फील हो रहा, लेकिन आप थोड़ा गौर करो तो शायद हो जाए। हाँ अच्छा, इसमें ना एक और बहुत अहम बात पता क्या है, एक बहुत अहम बात और इमेज का कंटेंट है। यहाँ पे ये जो इमेज है ना हमारे सामने, ये जो खोपड़ी का इमेज है, एक्सरे इमेज है, इसके अंदर कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट में वेरिएशन नहीं है, कंटेंट एक जैसा है। तो यहाँ पे अगर आपके ग्रे लेवल रिड्यूस होके आधे भी रह गए ना, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2 इनके दरमियान को फर्क फील हो रहा है? ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमने ग्रे लेवल जो है वो आधे कर दिए हैं, मतलब 0 से 255 की बजाय सिर्फ 0 से 127 रह गए, लेकिन हमें फर्क फील ही नहीं हो रहा। इवन हमें 0 से 63 तक भी फील नहीं हो रहा नंबर 3 में। इन दोनों का आपस में थोड़ा सा फील होता है, अगर हम गौर करें तो इन दोनों का आपस में फील होता है। तो इतने नंबर ऑफ लेवल रिड्यूस कर देने के बावजूद हमें फर्क फील नहीं हो रहा। क्या ये जो कहानी है ये हर तरह के इमेजेस के लिए सेम रहेगी? मतलब मुझे यूं कहना चाहिए कि फिर तो हमें हर इमेज के जो क्वांटाइजेशन लेवल हैं वो 256 नहीं रखने चाहिए। हमें क्या जरूरत है कि हम 8 बिट में सेव करें? क्यों ना हम उनको 6 बिट्स में सेव करना शुरू कर दें? So this is my question from you people. Shouldn't we do that? Why do we need 256 gray levels? सर कुछ जगह पे क्वालिटी ज्यादा मैटर कर रही होती है। For example, कैसे इमेजेस में? सर जिस तरह एयरपोर्ट पे अगर करेंगे तो हमें 256 में करनी चाहिए क्योंकि एक्सरे करना चाहिए, और अगर हम बॉडी का कर रहे हैं तो 32 पे भी सही है। So actually we are saying कि जिस इमेज के अंदर कंटेंट ज्यादा है उसके लेवल ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज जहां पे कंटेंट ज्यादा हो और हम लेवल कम कर दें तो फौरन फर्क फील होगा। यानी कि मिसाल के अंदर एक पिक्चर जिसमें लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं, अब उस पिक्चर के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट है कि मैं 256 से 128 ग्रे लेवल पे भी आऊंगा, यानी कि 8 बिट से 7 बिट पे भी आऊंगा तो वाज़ेह फर्क फील होगा। तो ये बेसिकली सारी कहानी जो मैं आपको सुना रहा था, ये एक रिलेशनशिप समझने की बात कर रहा था विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेंट ऑफ एन इमेज एंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू सेव एवरी पिक्सल। तो अगर मेरे पास कंटेंट बहुत कम है, जैसे कि ये सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है, तो यहाँ पे अगर मेरे काबू में है इमेजिंग सिस्टम तो मैं नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन बिट लेवल कम भी कर दूं, क्वालिटी पे भी खास फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी स्टोरेज भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा वो कैमरा इज एक्सपेक्टेड टू टेक एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ सीन, तो फिर मैं सोचूंगा नहीं यार, इसको 8 बिट ही लेना चाहिए ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन कॉपी हो।
लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे इमेजेस वाला कैमरा होगा तो मैं कहूँगा यार नंबर ऑफ बिट्स कम भी कर दो, इफ स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। ये बात समझ आई मेरी? इसी तरह हमारे पास 16 ग्रे लेवल्स, 8 ग्रे लेवल, अब तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है, 4 ग्रे लेवल्स एंड 2 ग्रे लेवल्स। और ये 2 ग्रे लेवल का मतलब 1 बिट है, 4 का मतलब 2 बिट है, 8 ग्रे लेवल का मतलब 3 बिट है। ये कहानियां अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अब तक 16 का मतलब 4 बिट है। दे मीन द सेम थिंग, चाहे मैं ग्रे लेवल बोलूं या बिट बोलूं। अब जो कंटेंट की डेफिनेशन है वो सही मायनों में इन इमेजेस से क्लियर हो रही है। इस इमेज में सबसे कम कंटेंट है। ये मेरा क्वेश्चन है आनिस से। आनिस सर फर्स्ट इमेज में, फर्स्ट मतलब लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट। और वहाज, आप क्या कहते हो? वहाज, वहाज गायब है वहाज? सर उसके थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है। टाइप करके बता दे भाई, फौरन फौरन टाइप कर। नहीं, ये वासिक है, वासिक। यस सर। आप इस आंसर दो इस बात का। सर कंटेंट कम सर, सेंटर वाली पिक्चर में। अच्छा ठीक हो गया। वहाज आपकी अगर ये फर्स्ट क्लास है तो बेटा ये फर्स्ट टॉपिक भी आज ही है और मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। लेट ज्वाइन ना किया करो, ये अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। इसमें सबसे कम कंटेंट जो है हमारा वो इमेज नंबर 1 में है, उससे ज्यादा कंटेंट इमेज नंबर 2 में है और सबसे ज्यादा कंटेंट जो है हमारा इमेज नंबर 3 में है। तो प्रोबेबली अगर मैं इमेज नंबर 1 को 64 ग्रे लेवल्स में या 128 ग्रे लेवल्स में भी दिखाऊं तो आपको इतना फर्क फील ना हो। लेकिन अगर यही काम मैं इमेज नंबर 3 पे करूं और उसके मैं ग्रे लेवल्स जो हैं वो 256 से रिड्यूस करके 128 भी करूंगा तो आपको फौरन क्वालिटी में फर्क फील होगा। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट कंटेंट। ओके, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड DPI? डॉट्स पर इमेज, डॉट्स पर इंच सर, इंच। यस। सो ये बेसिकली टर्म पुरानी टर्म है जो बेसिकली हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने से रेलेवेंट थी कि जब किसी इमेज को प्रिंट करने की बारी आती है तो हाउ मेनी डॉट्स आर प्रिंटेड पर इंच, पर स्क्वायर इंच, कि हर स्क्वायर इंच के अंदर कितने डॉट्स जो है वो प्रिंट करने की अहलियत है। तो पुरानी अखबारें जो काफी साल पुरानी, अगर आप 20 साल पुरानी कोई अखबार देखो और उसके अंदर छपने वाली किसी तस्वीर को अगर गौर से आप देखोगे तो उसके पिक्सल्स के दरमियान फासला भी आपको वाज़े नजर आएगा। मतलब उस वक्त के जो प्रिंटर थे, जो वो न्यूज़पेपर प्रिंटर थे, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ज्यादा से ज्यादा डॉट्स स्प्रे कर सकें, प्रिंट कर सकें पर स्क्वायर इंच। और आजकल हमारे पास बड़ी अच्छी प्रिंटिंग मशीनरी है जिसकी वजह से अखबार में छपने वाली जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर नजर आती है और पिक्सल्स के दरमियान गैप फील नहीं होता, बिकॉज इट इज प्रिंटिंग मोर डॉट्स पर इंच। तो चूंकि ये बात हार्ड कॉपी से रेलिवेंट है और इसी बात को जो है वो हमारे तमाम इमेज एडिटिंग टूल्स भी DPI यूज करना शुरू हो गए वर्ड, जबकि एक्चुअल वर्ड डिजिटली इट इज PPI, pixels per inch. So digitally speaking, we talk about pixels per inch. अब आप लोगों ने पहला अपना होमवर्क लिख लेना है जो आपका टू डू है, जिस पे आपने काम करना है, which is searching the internet. लाइक गूगल में आपने ये चीज लिख देनी है कि DPI वर्सेस PPI। इसको अच्छी तरह समझना है, गूगल करके आपने अच्छी तरह समझना है कि इसका क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है। आपको मैं फिलहाल जो थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा वो ये हैं कि अगर आप सपोज कभी कोई पेपर पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो जो पब्लिशर है वो आपसे रिक्वायर करता है कि जो आप मुझे पिक्चर्स देंगे प्लीज सेंड द पिक्चर एटलीस्ट इन 300 DPI। वो कहना आपको ये चाह रहा है
कि आप अपनी इमेज की रेजोल्यूशन को इतना अच्छा सेट करके दें कि once we print that thing into hard copy, the printer can print 300 dots within a square inch. इसी तरह आपने गौर किया होगा कि स्कैनर से जब आप कोई चीज स्कैन इन करते हैं और अगर आप वहां पे जो DPI है वो 300 लिखें तो स्कैन होने के बाद इमेज का एक खास साइज आता है, और अगर वही DPI आप 1200 कर दें तो स्कैन होने के बाद वही इमेज बहुत बड़ा आपके पास आ जाता है, बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एज वेल एज स्टोरेज। तो जनाब अगली बात ये हो गई कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि एक इमेज है जो कि 300 बाय 300 का है डिजिटली, और ये 300 DPI पर बना हुआ है, तो मुझे इसका प्रिंटेबल साइज बताएं, वो क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है कि प्रिंट होने के बाद ये इमेज कितने इंच बाय कितने इंच का बन जाएगा? जी कोई आंसर? 900 by 900। नहीं बेटा, 1 by 1 inch। यस 1 इंच बाय 1 इंच, 1 इंच बाय 1 इंच का ये प्रिंट होके बना, because there are 300 dots per inch, and actually this D is confusing now because it has been replaced with P, pixels। तो अगर मैं पिक्सल्स पर इंच यहाँ पे बोलता तो शायद आप मुझे बहुत जल्दी बता देते कि 1 इंच बाय 1 इंच होगा। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार अगर एक इमेज हो जो 2 इंच बाय 2 इंच का हो और मैं उसको स्कैनर से स्कैन करूँ 600 DPI पे, तो वो डिजिटली कितने का बनेगा? अब आप इसके उलट काम करोगे, कितने का बनेगा? Nope. No. 300 हो जाएगा ना सर, 2 इंच। No. अब यही आंसर तुम लोगों ने मुझे देने हैं। ये जो मैं आप लोगों को ये टू डू दे रहा हूँ ना, कि आप लोगों ने DPI वर्सेस PPI सीखना है और प्रिंटेबल साइज वर्सेस डिजिटल साइज सीखना है, इसकी कैलकुलेशंस कर लेनी है, और दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी क्विज व्हिच कैन बी इन एनी क्लास। सो क्विजेस के ऊपर क्विजेस का टाइम विद इन द क्लास और क्विजेस किस क्लास में होंगे ये हमेशा अनअनाउंस्ड होता है, तो ये मैं अब आपसे वहां पे कहीं पे कंफर्म कर लूंगा। Okay, coming to the final topic of today, which is RGB color images। कि जी हमें फिर ये images colored कैसे दिखते हैं, उनमें क्या साइंस होती है? लेक्चर शुरू होते हैं। जी बेटा ये टाइम ओवर हो गया, सॉरी, ठीक हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी बेटा। सर वो मैंने आपको मेल की थी, मेरा ना इशू है क्योंकि मेरा CI और डिप का फ्लैश आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे ऐड करवा देंगे FA17 वाली ग्रुप में, ताकि बेटा मैंने आपको रिप्लाई किया है कि आप जो सेक्शन चेंज करवाओगे यू ऑनलाइन में, दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ योर बैच एडवाइजर। यस सर, वो मैंने एक बात कर ली है, वो कह रहे हैं